If you'll get rid of that fanatic preacher you got and get a man with a doctor of divinity who's got some sense, we'll build a nice big classical church and we'll be like the rest of them. अगर तुम उस खपती मनाद को भगा दो और कोई ऐसा आदमी चुन लो जो इल्मे इलाहियात को जानता हो, तो हम एक आला और खूबसूरत चर्च बनाएंगे और दूसरों की तरह बन जाएंगे. Shame on you! Amen. Rather have a man that didn't know split coffee from beans, but was filled with the Holy Ghost. Amen. That was uncompromised by the power of God. आपको शर्म आनी चाहिए. इसकी बजाय तुम्हारे पास ऐसा आदमी होना चाहिए जो फलियों में से कॉफी बनाना ना जानता हो, लेकिन रुल कुछ से भरा हुआ हो, खुदा की कुदरत से भरा हुआ हो, जो समझौते ना करता हो. But it's got us so starchy that some poor saint can break through in the meeting and speak in tongues or shout a little bit or do something, and the rest of them will all gander around and look. What was that? Well, wonder why. That must be a fanatic dropped in somewhere. लेकिन हो, ये बहुत ठंडे पड़ चुके हैं. लेकिन जब कोई गरीब मुकद्दस इबादत में जाकर गैर जुबाने बोलना शुरू करता है या नारे लगाने या कुछ और करने लगता है, तो बाकी सब लोग बड़ी बतकों की तरह उसे देखने लग जाते हैं. ये क्या था? ठीक, हैरान कुन है. क्यों? इसलिए ये जरूर ही कोई दीवाना है जो कहीं से चला आ रहा है. You know that's the truth. आप जानते हैं ये बात सच है. Some poor saint step in, get happy enough to raise their hands and cry and praise the Lord. Somebody who will holler amen to the preaching of the gospel, and the rest of them turn around and see what he said. That's Pentecostals. कोई गरीब मुकद्दस उठता है और खुशी से अपने हाथ उठाता है और पुकार उठता है, खुदावंत की तारीफ हो. कोई तो जुनूनी होगा जो अंजील की मुनादी पर आमीन कहेगा, और बाकी सब लोग मुड़कर उसे देखने लग जाते हैं और कहते हैं ये पेंटिकोस्टल है. What's the matter? You're a pattern after the Methodists, after the Baptists. They pattern after the Catholic. Catholic pattern after hell. And all together all after hell. Right. क्या मसला है? आप बैप्टिस्ट और मेथोडिस्ट के नमूने पर चल रहे हैं और कैथलिक की पैरवी कर रहे हैं, और कैथलिक दोजक की पैरवी कर रही है, और ये सब मिलकर दोजक की जानिब जा रहे हैं. ये दुरुस्त है. Delilah has wooed you into big churches, fine educated ministers, take the better class. दिलाइला ने आज बड़े बड़े चर्चिज, अच्छे तालीम याफ्ता और आला दर्जे के खादमों के जरिए शादी की पेशकश की है. Well, you know, so-and-so down here is a millionaire. If we could just get him to come into our congregation, oh my. ठीक है, आप जानते हैं फलां आदमी करोड़पति है. अगर हम उसे अपने चर्च में ले आएं तो अच्छा होगा. हो मेरे खुदाया. If he isn't born again, then he doesn't deserve to be there. अगर वो नए सिरे से पैदा नहीं हुआ तो वो इस काबिल नहीं है. उसे यहाँ न लाया जाए. I don't care if he's got $1 million. If he owns 40 Cadillacs. Whatever he's got to be born again, come right down to a new birth and be regenerated by the Holy Ghost, and come out of there in a new birth, snotting, crying and screaming and carrying on like the rest of them, and live a life afterwards to prove he's got it. मुझे इस बात की परवाह नहीं कि उसके पास लाखों डॉलर हैं या 40 कैटिलैक्स कारें हैं या चाहे उसके पास कुछ भी हो, मगर उसे नई पैदाइश हासिल करनी होगी. उसे नई पैदाइश पाकर रुल्कुस के वसीला नई मखलूक बनना होगा और नई पैदाइश में से आना होगा. जैसा कि मुझे माफ करना, एक चिल्लाते और पुकारते और रोते हुए जिस तरह दूसरे सब करते हुए आते हैं, और इसको अपनी जिंदगी से साबित करना होगा कि ये उसने पाया है. Amen. That's what you need. आमीन. यही तो है जिसकी आपको जरूरत है. Samson, the Philistines is up on thee. The communists is up on thee. The world's up on thee. The devil's up on thee. समसून, फलस्ती तुझ पर चढ़ाए, दैर्य तुझ पर चढ़ाए, दुनिया तुझ पर चढ़ाई, शैतान तुझ पर चढ़ाया. They go back and they see the Spirit of God perform miracles and do things of His resurrection, what Jesus promised. They say, you know, I think Brother Branham's got a lot of mental telepathy. My pastor said it was of the devil. ये लोग मुझे मुड़कर देखते हैं कि खुदा का रूह मौजज़ात दिखा रहा है और उसके जी उठने की बातों को जाहिर कर रहा है, जिसका यीशु ने वादा किया था. लेकिन वो कहते हैं, आपको पता है, मेरा ख्याल है भाई ब्रैनम ज़ेन को टेलीपैथी से पढ़ लेते हैं. मेरा पास्टर कहता है ये शैतान की तरफ से है. You poor hypocritical deluded infidel, all polished up.
You wolf in sheep's clothes. Jesus said, if you'd have known me, you'd have known my day. तुम नादार, रयाकार, दगाबाज, हक के मुनकर, सब पॉलिश किए हुए बेड़ों के रूप में बेड़िए हो। यीशु ने कहा था, अगर तुम मुझे जानते तो मेरे इस दिन को भी जानते। But you've got a bunch of Sauls that try to make you like the rest of the world. लेकिन तुम तो साउल जैसा झुंड हो जो दूसरी दुनिया की तरह बनने की कोशिश में रहता है। We want a bunch of men of God who don't compromise on the word but preach the truth and stand on the baptism of the Holy Spirit. मगर हमें तो खुदा के लोगों की तलाश है, ऐसे आदमियों का ग्रोह जो कलाम पर समझौता ना करता हो, जो सच्चाई की मुनादी करे और रूल कुछ के बपतिस्मे के साथ खड़ा हो। But what has the world done? It's shaved all your power off. मगर इस दुनिया ने क्या किया है? इसने आपकी सारी कुव्वत को काट डाला है। You were born Nazarite Pentecost, but the world certainly shaved your power. Now it's just as starchy as the rest of them. आप पेंतिकोस्त नजीर पैदा हुए थे, मगर दुनिया ने आपकी हकीकी कुव्वत को काट डाला है। अब आप दूसरे लोगों की तरफ पुरतकल्लुफ बन गए हैं। What are we going to do? What's going to happen? अब हम क्या करने जा रहे हैं? क्या होने जा रहा है? There's one glorious thing that I can think of in this text. इस मतन के इख्तिताम पर मैं एक शानदार बात सोच रहा हूँ। While Samson was bound, we can't have a revival. Listen to our loyal brother Billy Graham. Revive in our day. जब शमसून बंधा हुआ है तो हम में बेदारी कैसे आ सकती है? जरा हमारे वफादार भाई बिली ग्राम की बातें सुने जो कहते हैं हमारे दिनों में बेदारी आई। Listen to old Robert scream. Revive in our day. ओरल रॉबर्ट्स की पुकार सुने, हमारे दिनों में बेदारी आई। Listen to the rest of them. Revive in our day. बाकी सबको सुने, हमारे दिनों में बेदारी आई। How can we have a revival when we're bound? जब हम बंधे हुए हैं तो बेदारी कैसे आ सकती है? We bound the Holy Spirit with our organizations and traditions, and we can't have a Holy Ghost revival. Man. हमने रूल कुछ को अपनी तंजीमों और अपनी रवायत में जकड़ डाला है, तो हमें रूल कुछ से बड़ी बेदारी कैसे मिल सकती है? आमीन। I know that's scorching hot with the weather, but it's the truth. मैं जानता हूँ ये बातें गर्म और जुलसाने वाली हैं, मगर ये सच्चाई है। How can we have a Holy Ghost revival when you're so bound and starchy? Form of godliness, the Bible said they'd have. Form of godliness, but would deny the power thereof. आपको रूल कुछ वाली बेदारी कैसे मिल सकती है जबकि आप ठंडे और बंधनों में बंधे हुए हैं? बाइबल कहती है वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे, वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे, मगर उसकी कुव्वत को कबूल नहीं करेंगे। The power of what? The power of the organization, the power of the world, the power of the church, the power of the Holy Ghost. That's the secret place in the church. कौन सी कुव्वत को? तंजीमी कुव्वत को? दुनियावी कुव्वत को? कलीसियाई कुव्वत को? नहीं, बल्कि रूल कुछ की कुव्वत को। यही तो कलीसिया का पोशीदा मकाम है। And when the church adopts educated preachers and big buildings and finery and instead of the old-fashioned Holy Ghost, it better be in a mission again. Amen. जब कलीसिया तालीम याफ्ता मुनादों और बड़ी इमारतों और आला चीजों को अपनाती है बजाय इसके कि पुरानी तर्ज के रूल कुछ याफ्ता मुनादों को अपनाए जो इस मिशन को बेहतर कर सकेंगे। आमीन, ये सच है। How are you going to have a revival of the Holy Ghost and people quench it and bound it and are afraid of it? There's where the trouble lies. आप रूल कुछ की बेदारी कैसे पा सकते हैं जबकि लोग इसे बुझाते हैं और इसे बांधते हैं और इसे डरते हैं? यहीं पर सारी परेशानी पैदा होती है। The Philistines is on thee. But the one blessed hope we have, while Samson was in jail, फलस्ती तुझ पर चढ़ाए, मगर एक बरकत उम्मीद हमारे पास है जब शमसून जेल में था। What's the first thing they'd done when they caught him? They bound him first. They took his power away. They found his secret. They found your secret. The world found your secret. उसको पकड़ने के बाद सबसे पहले उन्होंने उसके साथ क्या किया? उन्होंने पहले उसे बांधा और उन्होंने उसकी कुव्वत उससे छीन ली, क्योंकि वो उसका भेद जान गए थे। अब वो आपका भेद जान चुके हैं। दुनिया आपके भेद को जान चुकी है। Now you women all bob your hairs, goes like the world.
You men all go and act like the world. It's all right, tell jokes and dirty jokes and go out and smoke a few cigarettes and run out with the neighbors' wives and everything else like that. A little sociable drink to hold your job. आप खवातीन जो अपने बाल कटवाती हैं, ये दुनिया की तरह चलना है। आप मर्द हजरात भी दुनिया की तरह काम करते हैं, गंदे मजाक करते हैं और सिगरेट वगैरह पीते हैं और गंदे लतीफे सुनाते हैं और पड़ोसी की बीवी के साथ घूमते फिरते हैं और इस तरह के काम करते हैं और अपनी नौकरी बचाने के लिए शराब वगैरह पीते और मिलनसार रहते हैं। ये सब दुरुस्त है। I'd rather lay on my belly and eat soda crackers and drink branch water and stay clean and pure before God than to compromise for any kind of a job. इसकी बजाय मैं खाली पेट रहना और किसी चश्मे से पानी पीना पसंद करूंगा, लेकिन खुदा के साथ खालिस और दुरुस्त रहना पसंद करूंगा, बजाय अपनी नौकरी बचाने के लिए कोई समझौता करूं। Stay true to God. ये दुरुस्त है, ये सच है। खुदा के साथ सच्चे रहें। Samson, the Philistines is on thee. Branham Tabernacle, worldlyism is creeping in among you. समसून, फलस्ती तुझ पर चढ़ाए। ब्रैनम टैबरनेकल, दुनियादारी तुझ पर आहिस्ता आहिस्ता चढ़ाई। What about it? Have you exposed your secret? ये क्या है? क्या तूने अपना भेद जाहिर कर दिया है? Have you exposed that secret that God gave you when you were wallowing there in the sawdust a few years ago? क्या तूने वो भेद जाहिर कर दिया है जो खुदा ने तुझे कुछ साल पहले दिया था, जब तू मिट्टी में पड़ा हुआ रेंग रहा था? Have you let it creep out the social formal worship? What's happened to you? क्या तूने समाजी और रस्मी इबादत के साथ उस भेद को खो दिया है? तुझे क्या हो गया है? God can come down and perform a miracle and go right down to the audience and tell people the secrets of their hearts and everything and heal the sick and afflicted and do signs and wonders and preach His word as hard as He can by the Holy Ghost. And people say, well, I guess that's all right. We enjoy listening to it once in a while if we're not too tired. That's Branham Tabernacle. खुदा यहाँ नीचे आता है और मौजज़ात करता है और ठीक लोगों के दिलों के हाल सामीन के दरमियान बताता है और बीमारों को शिफा और मुसीबत में से निकालता है और अजीब काम और निशान जाहिर करता है और लोग रुलकुस के वसीला उसके कलाम को सुन सकते हैं। मगर लोग कहते हैं, ठीक है, मेरा ख्याल है ये ठीक है, मगर कभी कभी हमें सुनने में अच्छा लगता है अगर हमें थकाने वाला ना हो। ब्रैनम टैबरनेकल, ये ऐसा ही है। The Philistines is on thee. फलस्ती तुझ पर चढ़ाए। When it used to be when the preaching of the word and the old saints with the tears in their eyes would rise to their feet and walk sobbing, maybe not saying a word, just walking around 2 or 3 times and sit down, so filled with the Holy Ghost, the word fed them. पहले ऐसे होता था जब कलाम की मुनादी की जाती थी और पुराने मुकद्दस लोगों की आंखों में आंसू आ जाते थे। वो सुलगते हुए खड़े होते और बेचैन होकर टहलने लगते थे, चाहे मुंह से एक लफ्ज भी ना कहें, मगर 2 या 3 मर्तबा इधर उधर चल फिर कर फिर बैठ जाते थे। बस वो रूल कुछ से भरे होते थे और कलाम उन्हें आसूदा करता था। Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. इंसान सिर्फ रोटी से जीता ना रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। Philistines is on thee, Branham Tabernacle. ब्रैनम टैबरनेकल, फलस्ती तुझ पर चढ़ाए। Philistines is on you, Pentecostal. पेंटिकोस्टल, फलस्ती तुझ पर चढ़ाए। Of course, the Philistines got you, rest of you. Long time ago when you organized yourself so tight. Nothing could come unless you was a Presbyterian, Baptist, Methodist, Catholic or something. You wouldn't have nothing to do with the rest of them. दरअसल फलस्तियों ने तुम्हें तब थाम लिया था जब बहुत अरसा पहले तुमने अपने आप को कसकर मुनज़्ज़म कर लिया था। ये अंदर नहीं आ सकते थे जब तक आप कम होकर एक प्रेस्बिटेरियन, बैप्टिस्ट, मेथोडिस्ट, कैथलिक या कुछ और न होते। आपको उस वक्त तक बाकी सब लोगों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए था। So revival in our day, how can we have it? When the regular reviver giver is bound by the world. बस हमारे दिनों में बेदारी आई। हमारे पास कैसे बेदारी हो सकती है जबकि बेदारी देने वाला इस दुनिया से बांध दिया गया है। God won't come in where the world is. You can just depend on that. You associate with the world, then it's all of it. आप इस बात को ज़हन नशीन कर लें, जहां दुनियादारी है वहां खुदा नहीं आएगा। आप जब दुनिया से जुड़ जाते हैं तब उससे मुकम्मल कट जाते हैं। When you let the world creep in, you go to acting like the world, then you are finished. जब आप दुनियादारी को अपने अंदर आहिस्ता आहिस्ता आने देते हैं, तब फिर आप दुनिया जैसे काम करते हैं और फिर खत्म हो जाते हैं।
But when you'll cut loose every fetter from the world and come to God, God will use you until you go to flirting again. लेकिन जब आप दुनियादारी की हर जंजीर को काट डालेंगे और खुदा में आ जाएंगे और खुदा आपको उस वक्त तक इस्तेमाल करेगा जब तक दोबारा उन जंजीरों में ना जाएं। Here's the only hope that I have this morning to wind up my message is this. While Samson was bound, a new shock of hair growed out. अपने इस पैगाम को खत्म करते हुए आज सुबह मेरे पास सिर्फ एक ही उम्मीद है। जब समसून बंधा हुआ था तो उसके बालों की लटें फिर निकलने लगी। God send us another church just before the end time, that the power of the Holy Ghost can come into her in the demonstrations of the Spirit in Mark 16 can follow the church. खुदा ने आखिरी वक्त से पहले हमें एक और कलीसिया दे दी है ताकि रूह कुछ की कुव्वत उसमें आकर रूह को जाहिर करे और मरकज 16 कलीसिया में पूरा हो। Acts 2 and 4, Acts 2:38, all of it will be following right along with the church. Signs and wonders accompany the apostles. Great signs of His resurrection accompany Him. इमाल 2:4, इमाल 2:38 और ये सब कुछ कलीसिया के साथ जाहिर हो सके, जैसे रसूलों के साथ मोजज़ात और निशान जाहिर होते रहे, जैसे उसके जी उठने के अजीम निशान उसके साथ रहे। While we're in prison, surely God's growing a crop somewhere for the last great kill. जबकि हम असीरी में हैं, तो यकीनन कहीं खुदा की बढ़ती हुई फसल अजीम कटाई के लिए है। May it be you, my Christian friend, here this morning. May it be your strength has begun to grow. मेरे मसीही दोस्त, शायद आज सुबह वो आप ही हों। काश आपकी कुव्वत फिर से बढ़ना शुरू हो जाए। I pray that this message this morning and out into the land of where this will go, I trust that this message will help bring the vitamin to your system that will grow a spiritual power back into your life again. Amen. Let us bow our heads and pray. मैं दुआ करता हूँ आज सुबह ये पैगाम यहाँ से दूसरी जगहों पर जाए। मैं भरोसा रखता हूँ काश ये आपके तौर तरीकों में एक विटामिन की तरह आपकी मदद कर सके ताकि आप रूहानी कुव्वत को दोबारा अपनी जिंदगी में हासिल कर सके। आए हम अपने सरों को झुकाते हैं और दुआ करते हैं। O Lord God, Creator of the heavens and the earth, the author of everlasting life and the giver of every good and spiritual gift, take these words this morning and place them into the heart and water them, Lord. ऐ खुदावंद खुदा, आसमान और जमीन को बनाने वाले, अब्दी जिंदगी के बानी और हर एक अच्छी चीज और रूहानी नेमत के देने वाले, इन अल्फाज को आज सुबह लोगों के दिल में बो दे और खुदावंद अपना पानी इन पर बरसा। May the people pray over these things, seeing that the world has moved the church and has finally found its power, found its secret place, found where its secret lies, and has shaved it off. काश लोग इन बातों के बारे में दुआ करें और देख पाएं कि दुनिया ने कलीसिया को ब्याह की पेशकश कर रखी है और अब आखिर में उसकी कुव्वत का भेद जान लिया है, पोशीदा मुकाम की तलाश कर ली है कि वो भेद कहाँ पड़ा है और उसे काट दिया है। Has taken the peoples that once shouted the victory, once had the victory, and has shaved them off to stay home on Wednesday night to watch a television program. उसने ऐसे लोगों का सफाया कर दिया है जिन्होंने फतह का नारा मारा था और फतह हासिल की थी। लोगों को इस तरह मूंढा है कि वो बुध की शाम की इबादत करने की बजाय घर में टेलीविजन देखते रहते हैं। Taken the joy out of their hearts and given more love for the world than they have for God. उनके दिलों से खुशी छीन ली है और खुदा की मोहब्बत की बजाय उनके दिलों में दुनिया की मोहब्बत भर दी है। Has given more desire for worldly entertainment than they have the preaching of the gospel. उनको दुनियादारी दे दी है और दुनियादारी की ख्वाहिशात दे दी हैं और अंजील की मुनादी की बजाय तफरी दे दी है। If there's not a great band and a lot of carrying on and hooping and carrying on, then they don't want the old gospel anymore that brings tears of joy to the soul. अगर आज मुनादी में दुनियावी शोर शराबा ना हो और उल्टी सीधी हरकतें करने वाले ना हो और इसको जारी रखने वाले ना हो, तो लोग पुराने अंजील के मुनादों को पसंद ही नहीं करते जो दिलों को खुशी के आंसू देते हैं। That brings divine healing back,
that restores the apostolic gifts to the church, that brings in the risen Christ, the Messiah of this day. और इलाही शिफा देते हैं जिससे रसूलों वाली नेमतें दोबारा कलीसिया में बहाल होती हैं, जिससे जिंदा मसीह जाहिर होता है जो आज का मसीहा है. But as Israel was bound by their kings, that they could not follow their real king, and their real king, when he came, they didn't recognize him. जिस तरह इसराइली अपने दुनियावी बादशाहों के साथ बंधे हुए थे और हकीकी बादशाह की पैरवी ना कर सके, और हकीकी बादशाह जब हकीकी बादशाह आया तो वो उसको पहचान ना सके. So is it today, O Lord. The King of Glory has appeared in the form of the Holy Ghost. And Lord, they don't know it. They don't recognize it. यही हालत आज है. ऐ खुदावंद, जब रूल कुछ की सूरत में जलाल का बादशाह जाहिर हुआ है तो खुदावंद लोग इसे नहीं जानते, लोग इसे नहीं पहचानते. They're so organized, so tight, that they do not understand it because it's not in their organization. वो इस कदर तंजीमी रस्सियों से जकड़े हुए हैं कि वो सब ये समझ नहीं पाते क्योंकि ये सब उनकी तंजीमों से नहीं आया. Lord, this is a work of the devil that's done this to the people. खुदावंद ये इब्लीस का काम है जो उसने इन लोगों के साथ किया है. May the Samson of God, may the true in heart, those who are longing and crying and pleading and holding on, may they stay with the Lord until this new crop grows out. काश खुदा के समसून, काश दिल के सच्चे लोग, वो जो मुतमन्नी और रो रहे हैं और दरखास्त कर रहे हैं, इसको थाम लें. काश वो तेरे उस कलाम के साथ खड़े रहें जब तक नई फसल उग ना आए. ऐ खुदावंत, Until there comes forth again a joy in Zion, and there comes forth a group that can recognize and understand, that can see the Messiah and the hidden powers that's hid from the world, that they will not understand now. जब तक सायून में दोबारा खुशी ना आ जाए और जब तक लोगों का एक ग्रोह ऐसा ना आ जाए जो तुझे पहचाने और समझ सके, जो कि मसीहा और उसकी कुव्वत को पहचान सके जो दुनिया से छुपा हुआ है, और वो जो उसको अब तक नहीं समझ पाए. Grant, Lord, that they'll see this, for we asked it in Jesus' name. Amen. खुदावंद अता कर कि वो इसे समझ जाएं. हम यीशु के नाम में ये मांगते हैं. आमीन.